Good morning, student. Today we'll continue our chapter Sound. The sound of a motorboat can be heard louder under the water as compared to above the surface of water. मोटरबोट की आवाज़ जब आप पानी के नीचे रहोगे तो ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देती है और अबाउ द सरफेस कम सुनाई देती है. ऐसे क्यों है? Transmission of sound depends upon density of particles of the medium. If the density is more, the pressure developed in the medium due to vibration will be more, and so the transmission of sound will be quicker. होता क्या है? एयर जो हम मीडियम जिससे सुन रहे हैं, इट इज़ अ gaseous medium, and we know that in gaseous medium all the particles are randomly oriented, or we can say that the distance between the two particles is very large. But in case of liquid, the distance between the two particles is less as compared to solid. And due to this, the energy transfer or sound waves transfer its energy from one particle to another more easy as compared to air. Because the density is more and pressure developed due to this density, more vibration will set up. Particles start vibrating around their own position. Then, due to this, they transmit sound quicker. The particles in solid and liquid are closer as compared to gases. Their density is greater than gases. Therefore, the displacement of particles due to vibration is quicker and energy wastage during energy transmission is lesser. यहाँ सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू गैसेस, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज लेस देन देयर डेंसिटी डेफिनेटली विल बी हाई एज कंपेयर टू गैसेस, and therefore the displacement of the particle due to vibration is quicker, and also energy wastage during this transmission is lesser. How we'll learn? I'm giving you one example. If the 10 students are standing in a row or in a queue, right, and another 10 students are standing in a ground, they are randomly oriented. They are not standing in particular circle or queue. Teacher told you to transfer the ball from one student to another without moving from your own position. Then the student who are standing in queue, they can transfer the ball from one student to another. And the student, those who are randomly oriented in the ground, they also start transferring the ball from one student to another. But as the distance between these two students, those who are standing or in a ground, is greater as compared to the student standing in a queue. And while throwing or passing the ball from one student to another, as the distance is large, sometimes the throw will not correct and ball will go in another direction. But those students who are standing in queue, they can pass the ball very easily. Same is the case here. In liquid, the particles are closer to each other, therefore their density is greater, and they vibrate on its own position and transfer energy or sound quickly. Hence, we heard louder sound in water than in air. In terms of elasticity, such substances in which force of attraction between particles is more are more elastic, as it is difficult to bring any change in the position of such particles. अब इलास्टिसिटी के टर्म में बात करते हैं तो such substances in which force of attraction between particle is more. See, in liquid the force of attraction is greater as compared to gas, means they are more elastic. It is difficult to bring any change in the position of such particles, so we cannot easily change the position of the particles who are in liquid state. On creating any disturbance in such particle, they quickly try to back to their original position, and those particles which quickly come back to their original position are again ready to vibrate faster. And if you try to change the position of the particles in liquid state, they might change due to the force applied, but after removal of the force, they again regain their original position. Means in this way they are ready to vibrate again. You getting my point? जो पार्टिकल्स या जो स्टूडेंट लाइन में है
वो टीचर थोड़े हटने के बाद इधर उधर चले जाते हैं, बट जैसे ही टीचर आ जाती है तो वो बच्चे क्या होते हैं, वापस तुरंत लाइन में लग जाते हैं. Same is the case here. The force you are applying, due to this their position may get disturbed. But after removal of the force, they come to their original position quickly. And hence energy transfer or sound transfer is quick. Such medium which have higher elasticity have sound transmission faster. इस तरह से जिनकी इलास्टिसिटी हाई रहती है उनमें साउंड ट्रांसमिशन फास्टर होता है and with lower elasticity as compared to rubber. For this reason, the sound transmission in solid is fastest, as in gases it is slowest. ट्रांसमिशन सॉलिड में ज़्यादा होता है, साउंड ट्रांसमिशन जल्दी होता है, और गैसेस में वो क्या होता है, स्लो हो जाता है. साउंड एंड मीडियम. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन साउंड एंड मीडियम? Until now we studied that transmission of sound depends upon density of different medium. हमें पता है कि साउंड की जो डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम. जितनी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उतना साउंड जल्दी ट्रांसफ़र होगा. थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो मीडियम. और हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है. विल द साउंड रीच यू? Let us do an experiment. An electrical pail and a glass pail jar was used as shown in figure. Now have you seen this electric pail? And this is your electric pail jar. This pail is placed inside the electric pail, inside the pail jar. The pail was hung inside the pail jar and it was connected to a vacuum pump. This electric pail is connected to this vacuum pump. Now, on pressing bell switch, its sound was heard. As soon as you switch on the button, you will hear the sound. When air inside the jar was slowly pumped out using vacuum pump, the sound get lower. And as soon as you start pumping out the air outside, the air which is present inside the bell jar, you remove the air through this vacuum pump. The sound of the bell become lower and lower, and a stage come the sound completely stop. Though the bell is ringing, you can't hear the sound. No sound could be heard. The conclusion made through this experiment was that sound cannot travel in vacuum, and hence we always need some medium to hear sound. That conclusion is important. Sound cannot travel in vacuum. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता है, इसीलिए स्पेस में जाने वाले जो एरोनॉट्स होते हैं वो एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं. If there is no atmosphere on the moon, will astronaut be able to speak with each other? अब एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे मीडियम नहीं होगा, तो एस्ट्रोनॉट एबल टू स्पीक विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे नहीं, वहाँ रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ होता है. Types of waves. On the basis of direction of vibration, we know that when transmission of wave occur, there is no transfer of particle of medium. पार्टिकल का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. They only vibrate with respect to their mean position. Particle vibrate to their mean position. वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो वाइब्रेट होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव कैन बी ऑफ टू टाइप. इस तरह से जो पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, और वेव प्रोपोगेट हो रही है, आगे जा रही है, तो इस तरह से जो वेव फॉर्म होती है वो दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव. फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. टेक a slinky, that is plastic spring toy. कोई भी प्लास्टिक का स्प्रिंग टॉय आप ले लो जिसमें स्प्रिंग होगा. होल्ड बोथ एंड्स ऑफ द स्लिंकी एंड पुल एंड पुश देम टू एंड फ्रो वन बाई वन. आपको क्या करना है, उसको पहले पुल करना है, फिर पुश करना है, मतलब कंप्रेस करना है और फिर उसको खींचना है. नाउ मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द स्लिंकी एंड रिपीट द अबाउ स्टेप. और इसको करते जाना है और पॉइंट मार्क करते जाना है आपको. Notice the mark carefully. On pushing and pulling the slinky to and fro, the mark on the slinky also moves in a direction parallel to the direction of propagation of displacement. आपने देखा कि जो मार्क्स आपने किया था तो वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. किस दिशा में, जिस दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है.
Hence, the waves in which the vibrations of the particles of the medium is in a direction parallel to the direction of propagation of wave. यदि पार्टिकल्स उसी दिशा में वाइब्रेट हो रहे हैं जिस दिशा में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. पैरेलल होगा मूवमेंट, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल. द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टेक्स प्लेस इन अ सिमिलर वे. साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. अब ट्रांसवर्स वेव क्या होंगे? परपेंडिकुलर. फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अगेन यू हैव टू टेक अ स्लिंकी, दैट इज द स्प्रिंग प्लास्टिक टॉय. बाय कीपिंग वन एंड ऑफ द स्लिंकी फिक्स, यहाँ पे एक एंड को आपको फिक्स कर देना है, एंड मूव द अदर एंड अप एंड डाउन. इज द वेव फॉर्म इन दिस एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल वेव? यहाँ पे जो आपको वेव मिली वो डिफरेंट थी. ऑन मूविंग द स्लिंकी अप एंड डाउन, आप इसको इस तरह से मूव करोगे, अप, ये अप, और ये डाउन, ये अप, इस तरह से. द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज वर्टिकल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपोगेशन. तो जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? वर्टिकल. वेव आपकी ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट हो रहा है. यहाँ पे पार्टिकल भी ऐसा ही वाइब्रेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और वेव भी इसी डायरेक्शन में, तो उसको पैरेलल हो गए. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे. डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, द वेव फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. इन अ डायरेक्शन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. इस तरह से हमें दो टाइप की वेव्स मिल जाती है, और वो कौन सी होती है? एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. Now let's see what are the characteristics of the sound waves. The nature of waves can be defined based on four major: wavelength, frequency, amplitude and velocity. तो किसी भी साउंड वेव्स को जब आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको पहले उसके चार जो टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, देन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी. लेट्स सी व्हाट इज. We know that in a sound wave, compression and rarefaction occur consecutively. The density of air particle in compression is maximum while that is minimum in rarefaction. कंप्रेशन होता है तब यहाँ पे देखो डेंसिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, दैट इज इन रेरिफैक्शन. डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज मोर इन कंप्रेशन. This graph is drawn for longitudinal waves between the density of particle in a medium and distance traveled by a wave. ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए. लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीन्स वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो सारे ये बारीक दिखने वाले पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं. The part PQ is in the graph is compression while QR is rarefaction. यहाँ पे आपको PQ दिख रहा है. This is your PQ. This part is called compression. जब compression होता है तो up, and जब rarefaction हो रहा है that time it is down. Similarly, the raised part is a transverse wave is called crest. And यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ट्रांसवर्स वेव में उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पोर्शन जिसको हम रेरिफैक्शन बोलते हैं वहाँ पे उसको ट्रफ बोला जाता है. नाउ फर्स्ट टर्म इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन. दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर टू कॉन्सेक्यूटिव रेरिफैक्शन और ट्रफ्स, इनको बोला जाता है वेवलेंथ. देखिए यहाँ पे 1A ऊपर वाला दिख रहा हुआ है, ये आपका क्या है? दिस इज योर, ये पोर्शन क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड कंप्रेशन.
और इसको बोलते हैं अगेन कंप्रेशन। तो इन दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर लैम्बडा। और दो ट्रफ या फिर रेरिफैक्शन, जो निचला वाला हिस्सा है, उनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है वेवलेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड इसका ऐसा यूनिट है मीटर। यूनिट क्या है इसका? मीटर, डिनोटेड बाय लैम्बडा। ये लैम्बडा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, consecutive compression or consecutive rarefaction is called wavelength, denoted by lambda. Unit is meter. Second, amplitude. When a sound wave travels through air, the particles of air vibrate, forming areas of compression and rarefaction. जब कोई साउंड वेव ट्रैवल होती है एयर में से तो वो क्या करती है? कंप्रेशन और रेरिफैक्शन फॉर्म करती है। And as a result of this, the density of air in an area increases beyond normal and reaches its maximum, or sometimes it reduces below the normal and becomes minimum. तो उसकी वजह से क्या होती है? The density of air in an area, उस पास की एरिया की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो कंप्रेशन होता है। एंड बियॉन्ड नॉर्मल एंड रिचेस इज मैक्सिमम, और समटाइम इट रिड्यूसेस बिलो द नॉर्मल एंड बिकम मिनिमम। तो उस समय एयर की डेंसिटी कभी कभी एकदम मैक्सिमम हो जाती है या कभी मिनिमम हो जाती है। द मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मीन पोजिशन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल, किसकी डेंसिटी? पार्टिकल्स की डेंसिटी एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल की डेंसिटी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इन द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर ए। इसको ए से डिनोट करते हैं। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड मोस्टली डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो एकदम तेज है या एकदम सॉफ्ट आवाज़ है, इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर आवाज़ का लाउडनेस या सॉफ्टनेस डिपेंड करता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द मीन पोजीशन। जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तब उसकी डेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है एंड दिस इज द ए इज एम्पलीट्यूड। इस रीजन में कितने पार्टिकल्स हैं, उनकी डेंसिटी सबके पार्टिकल की मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम रहेगी तो लाउड आवाज़ सुनाई देगा, लाउडनेस रहेगा, और कम रहेगी तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस आएगा साउंड में। टाइम पीरियड, the time taken by two consecutive compression or rarefaction to pass through a point is called time period of the wave. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस सपोज दिस पॉइंट वी हैव कंसिडर, तो इस पॉइंट से कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, एक कंप्रेशन कंप्लीट और एक रेरिफैक्शन को जाने के लिए कितना समय लगता है? दैट टाइम वी कॉल टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब होगा? एक बार कंप्रेशन और एक बार रेरिफैक्शन। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, जैसे इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक जाने के लिए इस साउंड वेव को कितना समय लगा? दैट वी कॉल टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय लेटर टी और इसका यूनिट है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। We know that when sound travel through a medium, the density of the medium changes between maximum and minimum value. अब हमने देखा था कि डेंसिटी क्या होती है? चेंज होती है मैक्सिमम से मिनिमम जब साउंड वेव ट्रैवल होती है किसी भी मीडियम में। वन वाइब्रेशन इज completed when density moves from maximum value to minimum value and then reaches back to the minimum value. यहाँ पे देखो पहले वैल्यू मैक्सिमम हो गई है डेंसिटी की, फिर धीरे धीरे कम होते होते एक पॉइंट ऐसे आया कि यहाँ पे ये क्या हो गई? एकदम कम हो गई, तो ये क्या हो गई? देन रीचेस बैक टू मैक्सिमम वैल्यू, और फिर वापस वो मैक्सिमम जाती है। तो ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं 1 सेकंड में, कितने हुए यहाँ पे? 1 सेकंड
सेकंड में, यहाँ पे 1 2 3 4 वाइब्रेशंस हुए। तो ऐसे एक एक वाइब्रेशंस को काउंट करोगे आप एक सेकंड में कितने हुए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। Total number of such vibration in a unit time are called as frequency of the sound wave. If we count the number of compression and rarefaction passing through the wave in a unit time, then we can find out frequency of the wave. तो एक सेकेंड में कितनी आप वहाँ से वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं या कितने वाइब्रेशंस जा रहे हैं, यदि आप काउंट करते हैं तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू, और इसको डिनोट करते हैं न्यू से। ये लेटर को पढ़ा जाता है, वी नहीं बोलते, इसको न्यू बोलते हैं, NU न्यू। इट्स SI यूनिट इज हर्ड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स। द शार्पनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका शार्पनेस, पिच साउंड का डिपेंड करता है। लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड, तो शार्पनेस जो है, पिच जो है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। T इज इक्वल टू 1/ν और ν इज इक्वल टू 1/T। वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, try to solve this. Then speed of sound waves. The distance covered by one compression or one rarefaction in a unit time is called speed of wave. स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्रेशन, एक कंप्रेशन या फिर एक रेरिफ्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं वन क्रेस्ट और वन ट्रफ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव। और स्पीड का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड टाइम फॉर वन वाइब्रेशन डिनोटेड बाय टाइम पीरियड T, एंड स्पीड इज डिनोटेड बाय V, दैट इज वेलोसिटी। तो V इज इक्वल टू लैम्डा बाय T। व्हाट इज लैम्डा, वेव लेंथ, एंड व्हाट इज वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या है इसकी, एम्पलीट्यूड, distance between two consecutive crest or two consecutive trough. What is time period, number of vibrations in 1 second, denoted by T. Now we know that nu is equal to 1/T. nu क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन हमें पता है। तो यदि हम यहाँ पे T का वैल्यू डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा न्यू, तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ द साउंड वेव ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। हमें और एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी साउंड वेव का स्पीड नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, कि वो एयर है, वाटर है, गैसियस मीडियम है, या और कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, या किसी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। वन एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल इज गिवन, यू गो थ्रू इट, ट्राई टू सॉल्व इट। हियरिंग रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग sound can be divided into 3 categories: audible range, infrasound range and ultrasound range. तो हियरिंग रेंज 3 टाइप की होती है, एक ऑडिबल, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल रेंज या ऑडिबल साउंड, वी कैन नॉट हियर साउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, हम लोग सारी फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो हम लोग सिर्फ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को ही सुन सकते हैं। We can only hear sound having frequency within this range. Children below 5 years of age and dogs can hear up to 25 kilohertz. तो 5 साल से छोटे बच्चे और जो डॉग्स होते हैं उनका हियरिंग रेंज ज़्यादा होता है, वो होता है 25 किलोहर्ट्ज। इंफ्रासाउंड, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से कम है, उनको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। द साउंड प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ कोर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक के समय अर्थ कोर में इनसाइड द अर्थ जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा है, इंफ्रासाउंड। केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन साउंड, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासाउंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इफ़ वी आर एबल टू हियर एट इंफ्रासाउंड रेंज, वी कुड हियर द वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम जस्ट लाइक वी कैन हियर द वाइब्रेशंस ऑफ फ्लैपिंग ऑफ विंग्स बाय बी hovering near our ear.
जो मधुमक्खी हमारे कान के इसमें गुंजाती है, या जो भौरा होता है वो गुंजन करते जाता है, कान के पास आता है तो हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। या पंछियों के पास हम खड़े और वो एकदम से उड़ते हैं तो उनकी जो विंग्स फ्लैप होते हैं उसकी आवाज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं। बट आकाश में उड़ने वाला पंछी, उसके विंग्स वाइब्रेट हो रहे हैं या फ्लैपिंग हो रहा है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। वो कौन सी होती है? बिलो 20 हर्ट्ज। हम अल्ट्रासाउंड, द साउंड अबाउट 20 किलो हर्ट्ज आर अल्ट्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की साउंड वो होती है अल्ट्रासाउंड। सच साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन। डॉल्फिन्स को आपने टीवी पे देखा होगा, तो डॉल्फिन जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। बैट्स को भी चमगादड़ जो आवाज़ करते हैं वो भी 20 अल्ट्रासाउंड होती है, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है। द हियरिंग ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट एंड मॉथ्स आर वेरी सेंसिटिव। हमारे जो इंसेक्ट या मॉथ्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इन लोग की जो हियरिंग क्या बोल सकते हैं, इनके कान बहुत तेज होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू हियर। They can hear the sound of high frequency produced by bat and thus can protect themselves from bat around them and avoid becoming a prey. क्योंकि जो चमगादड़ इन लोगों को खाते हैं या डॉल्फिन्स छोटे कीड़ों को खाते हैं, तो उन कीड़ों की जो हियरिंग रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है। 20 किलो हर्ट्ज के अबाव का साउंड तो हम लोग नहीं सुन पाते, बट वो लोग क्या है, इंसेक्ट या मॉथ्स उसको सुन लेते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे चमगादड़ है, हमें उससे बचना है। इस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं। ये नेचर्स गिफ्ट उनको मिला है। I think we have discussed about all the terms which are used in sound. You go through it, try to solve the numericals. Thank you.